أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ سب کا کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج کے اس لیسن میں جو لیسن نمبر 119 سبق نمبر 119 ہے، اس میں آج میں چھوٹے بچوں کے لیے سمر کورس لائی ہوں۔ سمر ویکیشن کے اندر بچوں کے لیے بہت آسان سا چھوٹا سا کورس ہے، جس میں میں نے 4 پیج حروف تہجی کے سلیکٹ کیے ہیں، جس میں نے بچوں کو مخارج جو ہیں وہ انشاءاللہ سکھاؤں گی، اور حروف کی ادائیگی سکھاؤں گی، بچوں کو بدلتی ہوئی حروف کی شکلیں سکھاؤں گی، اور قرآن کے اندر یہ کس طرح سے حروف کی آواز نکالیں گے، اور کس طرح سے حروف کو ملا کر اور آواز ہر حرف کے بعد اس کی فوراً سے آواز کس طرح سے نکلے گی۔ پہلے مخارج کی پریکٹس ہوگی، پھر اس کے بعد بچے جو ہیں ان حروف کو بار بار پڑھیں گے تو ان کے پریکٹس ہو جائے گی اور مخارج کی ادائیگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ 4 پیج ان کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور حفظ میں ان کے لیے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر سکھا رہی ہوں، اور تاکہ یہ بچے میرے ساتھ سیکھیں، میرے ساتھ جو ہے اس کو یاد کر لیں، پڑھ لیں، حروف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے مخارج بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہ میں آج ان کو اس اپنے سمر کورس کے لیسن کے اندر ان کو سکھا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ان کے لیے لائی ہوں دعائیں چند۔ اس کے اندر ایک دودھ پینے کی دعا شامل کی ہے، سونے کی دعا شامل کی ہے کہ بچے جب سوتے وقت دودھ پیئیں گے تو وہ دعا پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، اور سونے کی دعا جو ہے۔ اس کے علاوہ بچے جب گھر میں ماں باپ کو دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے تو زیادہ تر شوق ہوتا ہے بچوں کو رکوع اور سجدہ میں جانے کی کا، تو ان کو رکوع اور سجدہ میں جانے کی تسبیحات بھی سکھا رہی ہوں انشاءاللہ اسی کورس کے اندر، اسی لیکچر کے اندر۔ اور اس کے بعد جب ماں باپ نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی انگلیوں پر، اپنے پور پر، تو بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو بچوں کو بتانے کے لیے، بچوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات جو ہیں وہ بھی اس سبق میں، اس لیسن میں لائے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی، اور امید ہے کہ سمر کے اندر، سمر ویکیشن کے اندر بچے اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں گے۔ جہاں پر بچے آپ سے کہیں کہ ہمیں کارٹون دیکھنے ہیں تو آپ ان کو یہ لگا کے دیں، انہیں کہیں پہلے آپ یہ پورا سن لو، یہ پورا یاد کر لو، پڑھ لو، اس کے بعد آپ کارٹون دیکھیے گا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے جو ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے۔ اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جب آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو میں سمجھوں گی کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور آپ نے اس کو لائک کیا ہے، تاکہ مزید اور ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، انسان مزید اور کام کر سکتا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے یہ میرا کام، آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کے بچوں کے حساب سے، تو ضرور آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ہدایت اور تلقین کریں کہ اپنے بچوں کو یہ لگا کے دیں، تاکہ آپ کے بچوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ فائدہ مند ہوں، آپ کے بچے ان چھٹیوں کے اندر کچھ سیکھ سکیں۔ تو چلیں اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ ہمارے سامنے پیج نمبر 5، پیج نمبر 5، صفحہ نمبر 5 ہمارے سامنے کھل چکا ہے۔ اس کے اندر میں آج سکھا رہی ہوں بچوں کو مخارج، ان حروف کے نکلنے کی جگہیں کون سی ہیں اس کی ہم انشاءاللہ العزیز پریکٹس کریں گے اس کے اندر، اور بچوں کو سکھائیں گے۔ اکثر بچے کارٹون دیکھنے کے لیے موبائل مانگتے ہیں، بچوں کو ضرور موبائل دیں، لیکن ان کو یہ چیز لگا کے دیں تاکہ بچے اس چیز کو سیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے، کیونکہ تمام حروف جو ہیں وہ گلے سے لے کر ہونٹوں تک کے اندر کی جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حلق سے شروع کریں گے، گلے کے آخری حصے سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ ہا۔ گلے کے آخری حصے پہ ہم ہاتھ رکھیں گے، انگلی رکھیں گے، اور ہم آواز نکالیں گے حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ اس کے بعد گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے عین ہا۔ گلے کے درمیان میں ہم انگلی رکھیں گے اور ہم نکالیں گے عین ہا،
आइन हा। उसके बाद गले के सबसे ऊपर वाले हिस्से से अदा होंगे गैन खा, गैन खा। इसी तरह कौफ कैफ, जबान की जड़ से अदा हो रहा है कौफ, जबान की जड़ से कौफ, इसको मोटा कौफ कहते हैं। और जबान की जड़ से थोड़ा सा पीछे मुंह की तरफ हटकर वहां से अदा होता है कैफ। ठीक है, ये है कौफ और ये है काफ। इसको नॉर्मल पढ़ना है काफ और इसको कौफ। ठीक है, जबान के दरमियान वाले हिस्से से अदा हो रहा है जब जबान का दरमियान ऊपर तालू से टच करेगा, तालू से लगेगा, तो ये 3 हरूफ अदा होंगे। इन 3 हरूफ को कहते हैं शजरा, शजरिया, हरूफ शजरिया है ये तीनों हरूफ। और जबान के दरमियान वाले हिस्से से हिस्सा ऊपर तालू से लगेगा। जीम शीन या, जीम शीन या। फिर दौद, जबान की करवट, करवट कहते हैं जबान की साइड को। जिस तरह हम अगर मुंह खोलते हैं, जबान को बाहर लाते हैं, तो उसकी जो साइड होगी, चाहे वो कोई भी साइड हो, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, तो जबान की जो साइड है, जो जबान की करवट है, जब वो ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से जाके लगेगी तो वहां से अदा होगा दौद, दौद। ये प्रैक्टिस करने से अदा होते हैं, प्रैक्टिस करने से आवाजें जो है वो सही निकलती हैं। इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आवाजें सही निकलेंगी। दौद, दौद। फिर आगे है लाम, नून, रा। ये तीनों हरूफ जबान के किनारे, यानी पहले हम बात कर रहे थे जबान की करवट, यानी पूरी साइड ऊपर लगानी है। फिर उसके बाद है दरमियान की साइड को छोड़ के जबान का किनारा, उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो उसको जबान का किनारा कहते हैं। जबान का किनारा ऊपर वाले दांतों की जड़ से लगेगा, जबान का किनारा ऊपर वाले दांतों की जड़ से यानी मसूड़ों से। जब जबान का किनारा टकराएगा तो वहां से लाम, नून और रॉ अदा होंगे। जबान आगे है तो, दाल, ता। जबान की नोक जब सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगे तो वहां से 3 हरूफ अदा होंगे, वो हैं तो, दाल, ता। जबान की नोक को सामने वाले बड़े वाले 2 दांतों की जड़ से लगाना है, फिर अदा होगा तो, तो, दाल, ता, ता, दाल, तो। आगे है वा, वैल, सा। जब जबान की नोक सामने वाले बड़े वाले 2 दांतों के किनारे से लगे, सिरे से लगे, जबान की नोक को सामने वाले 2 दांतों के सिरे से टच करना है, तो वहां से टच करके अदायगी करनी है, तो वहां से अदा होगा वा, वैल, सा, सा, वैल, वा। आगे है सौद, जा, सीन। ये तीनों हरूफ सीटी वाले हैं, इनको अदा करते वक्त सीटी की आवाज आती है। जबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांत और नीचे वाले 2 दांतों के अंदरूनी किनारे से जबान लगेगी, यानी सामने वाले 4 दांत बंद होंगे और उनके अंदर के किनारों से जबान की नोक लगेगी, तो वहां से अदा होगा सौद, जा, सीन। और आगे है फा। जब सामने वाले 2 दांत ऊपर वाले, उनके सिरे नीचे वाले होंठ की गीली जगह से लगेंगे, तो वहां से अदा होगा फा। जब दांतों 2 दांतों को, जो सामने वाले बड़े 2 दांत हैं, उनके सिरे नीचे वाले होंठ की गीली जगह पे लगाएंगे, तो अदा होगा फा। जैसे अफ, ठीक है, उफ, फा। उसके बाद है बा, बा। दोनों होंठों की गीली जगह, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, दोनों होंठों की गीली जगह जब आपस में टकराएगी तो अदा होगा बा, बा। आगे है मीम,
दोनों होंठों की खुश्की वाली जगह जब आपस में लगेगी, दोनों खुश्की वाले हिस्से आपस में मिलेंगे तो अदा होगा मीम। मीम मीम। उसके बाद है वाव। होंठों को गोल करके अदा किया जाता है। वाव जब हम पढ़ेंगे वाव तो होंठों को गोल करेंगे। ठीक है, होंठों को गोल करने से मिलाते हुए, होंठों को मिलाते हुए गोल करेंगे तो अदा होगा वाव। उसके बाद है अलिफ। ये मुंह के खाली हिस्सा से अदा होता है और ये खाली अलिफ जो है ये हरूफ मद्दा की शक्ल में, अलिफ मद्दा की शक्ल में अदा होता है। इंशाल्लाह ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। जिस तरह से बा अलिफ बा, तो ऐसे मुंह खोलते हैं तो इसकी आवाज निकलती है। ता अलिफ ता, सा अलिफ सा। ठीक है, तो ये मुंह के खाली हिस्सा से अदा होता है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है बार बार, तब आपको ये अच्छे तरीके से इसकी आवाजें आप निकाल सकेंगे। जी, अगला पेज है हमारे सामने खुल चुका है। ये है हरूफ की बदलती हुई शक्लें। बच्चों हमेशा आपने याद रखना है कि ये हरूफ जो हैं वही वाले हरूफ हैं जो अलिफ से या तक हम अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है आपको, यहाँ पे क्या सिखाऊंगी मैं आपको, यहाँ पे क्या आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब ये हरूफ या इन हरूफ के साथ जब कोई दूसरा हर्फ मिलेगा तो तब इनकी शक्ल जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं अलिफ तो इसी तरह ही होगा, और जब आप अलिफ जो है किसी हरफ के आखिर पे आएगा, किसी के साथ मिलेगा, अकेला तो ये इसी तरह होता है, लेकिन जब मिलेगा तो वो आखिर में आएगा और इस तरह से मिलकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं पहले बताया आपको पहली तख्ती में कि बा अलिफ बा, ये इस तरह से अलिफ आएगा। ठीक है, उसके बाद है बा। बा जब किसी दूसरे हरफ के साथ मिलेगा तो ये आधा लिखा जाएगा। ठीक है, इतना लिखा जाएगा और आगे कोई और दूसरा हर्फ इसके साथ मिल जाएगा। ये है बा की शुरू वाली शक्ल। और ये है अगर बा इधर भी इसके कोई हर्फ है, इधर भी कोई इसके हर्फ है, दरमियान में आ रहा है, तो इसका एक सिरा बनाया जाएगा और उसके नीचे एक नुक्ता दिया जाएगा। ठीक है, और आप याद रखें कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है। ठीक है, तो ये बा की दरमियान वाली शक्ल। इसी तरह ये ता की शुरू वाली शक्ल, और ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, 2 डॉट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये है ता की दरमियान वाली शक्ल। उसका जब इसके इधर भी इसके कोई हर्फ होगा, इधर भी इसके कोई हर्फ होगा, ये दरमियान में होगा, तो एक इसका सिरा बनेगा और ऊपर इसके दो नुक्ते आ जाएंगे। ठीक है, ये है सा की शुरू वाली शक्ल। आपने सा, जैसे मैं पहली तख्ती में बता चुकी हूं आपको, सा जबान की नोक को सामने वाले दो दांतों के सिरे से आपने लगाना है तो अदा होगा सा। सा इंशाल्लाह सारी तख्तियों में हमारी मखारिज की प्रैक्टिस होती रहेगी। और ये है सा का दरमियान वाला हिस्सा, जिस तरह बा का, ता का, सा का। उसके बाद जीम जो है वो उसके साथ जब कोई हरफ जुड़ेगा तो उसकी ये वाली शक्ल होगी। ठीक है, जीम। हा, हा की भी इसी तरह, खा की भी इसी तरह। जीम के नीचे नुक्ता होता है, खा के ऊपर नुक्ता होता है। और दाल जो है ये अपने आगे किसी हर्फ को नहीं जोड़ता। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कोई हरफ जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये है दाल। राल, राल जबान की नोक से आपने अदा करना है इसको। राल, रॉ, जा, जा, सीन, शीन, सौद, इसको आपने पुर पढ़ना है, सौद, सौद, दौद। जबान की करवट को ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से लगाना है तो अदा होगा दौद। तो, तो, वो, वो। आइन, गले के दरमियान से आइन। गौइन, गले के ऊपर वाले हिस्से से गौइन। अब ये है गईन। ये गईन अगर इसके यहां भी कोई हर्फ होगा, इसके पहले भी और इसके बाद में भी, तो जब ये दरमियान में आएगा तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। आइन की भी ऐसी होगी लेकिन उसके ऊपर नुक्ता नहीं होगा, और गईन की शक्ल भी ऐसी होगी और उसके ऊपर नुक्ता होगा। और ये है फा का स्टार्ट वाला हिस्सा, शुरू वाला हिस्सा। और ये कौफ का दरमियान, अगर किसी लफ्ज के दरमियान में आता है तो उसकी ऐसी शक्ल होगी। ठीक है,
कौफ, ये इस कौफ की शुरू वाली शक्ल है, इसके आगे इसके कोई भी हर्फ जो है वो मिल सकता है। ये है बारी कैफ, कौफ कैफ, लाम, ये लाम है। किसी इसके शुरू में जो जब कोई लफ्ज आएगा, हर्फ शुरू में आएगा, तो फिर ये पूरा लाम लिखा जाएगा, ठीक है। और ये है मीम, ये पूरा मीम है। ये भी किसी हर्फ के एंड पे जब आएगा, किसी लफ्ज के आखिर में लिखा जाएगा, तो इसकी ये पूरा मीम लिखा जाएगा। और अगर किसी लफ्ज के दरमियान में आएगा तो इसकी ये शक्ल होगी। और किसी लफ्ज के आखिर में आएगा तब उसकी ये शक्ल भी हो सकती है। और इसके शुरू की शक्ल जो है, जब इसके साथ किसी और हर्फ ने मिलना होगा तो ये इसकी शुरू की शक्ल होगी, और इसके साथ आगे कोई दूसरा हर्फ मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि मीम के बाद या लगा है, फिर मीम लगा है, तो ये इसकी आखिर की शक्ल भी ऐसी बन सकती है और शुरू की भी ऐसी बन सकती है। और ये है नून का शुरू का सिरा, और ये नून का दरमियान का सिरा, ठीक है। और ये है वाव, वाव भी अपने आगे किसी हर्फ को नहीं जोड़ता, इसके पीछे जुड़ सकता है, तो ये है वाव। हा, हा, ये गले के आखिरी हिस्से से अदा होगा, हा। और ये जब हा किसी हर्फ के किसी लफ्ज के दरमियान में ये हर्फ आएगा, हा इस तरह, तो फिर इसकी ये शक्ल होगी। इसी तरह हा, जब किसी ये वाला हा अकेला आता है ऐसे, लेकिन जब इसको किसी हर्फ के साथ मिलाया जाता है तो फिर इसकी शक्ल भी ऐसी ही बन जाती है, जैसे नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। और आखिर में अक्सर लफ्जों के आखिर में इस तरह की हा आती है, ठीक है। जैसे किसी भी सूरत में आप देखें, वैलुल लिकुल्ली हुमाजा तिल्लुमाजा, इसके ऊपर नुक्ते आ जाए तो ता हो जाता है, और नुक्ते हटा दिए जाएं तो ये हा बन जाता है, ठीक है। और ये है हमजा, 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 और या, ठीक है। ये या इस तरह से होती है, ठीक है। और कुरान के अंदर एक या होती है, छोटी या बड़ी या नहीं होती। तो ये या की शुरू वाली शक्ल है, और ये या की दरमियान वाली शक्ल है। अगर किसी लफ्ज के दरमियान में या आता है तो उसकी ये वाली शक्ल होगी, ठीक है। तो ये इसकी आपने पहचान करनी है। ये आपको पहचान हो जाएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज जो अब हम पढ़ने लगे हैं, पेज नंबर 7, उसमें आप खुद से आप देख लेंगे कि जो है किस तरह से ये हर्फ जुड़ जुड़ के तो एक 2-3 हर्फों का एक लफ्ज बनता है, ठीक है। हाँ जी, जिस तरह से हम पेज नंबर 6 में मैं अभी आपको बता रही थी, समझा रही थी, हरूफ की बदलती हुई शक्लें। अब वो जो बदलती हुई शक्लें हैं वो हम यहाँ उनके शुरू में भी हम कोई हर्फ लगा हुआ आप देखेंगे, उसको भी हम पढ़ना सीखेंगे। और वो वाले हर्फ जो हैं, जो बदलती हुई शक्लें हैं, वो दरमियान में भी आएंगी और आखिर में भी आएंगी। अब सबसे पहले हा देखें, ये मखारिज के हिसाब से ये है, जैसे हमने पेज नंबर 5 में पढ़ा था कि गले के सबसे आखिरी हिस्से से अदा होता है हा, हा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हा है। तो हा की जो ये वाली शक्ल थी शुरू वाली, उसके बाद अब अलिफ लगा है तो उसकी ये वाली शक्ल है, और अलिफ मिला है तो ये इस तरह बन गया। तो इसको हम पढ़ेंगे हा अलिफ। इसी तरह फिर आइन अलिफ, फिर हा अलिफ, कौफ अलिफ, कौफ को जबान की जड़ से अदा करना है, कौफ अलिफ। ये बारीक काफ है, कैफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ, सौद अलिफ, सौद को मोटा पढ़ना है, सौद अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, ये ब्लैक वाला लाम है और रेड वाला अलिफ है, लाम अलिफ, नून अलिफ, नून का शुरू वाला सिरा, जा अलिफ, तो अलिफ, दाल अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, मीम अलिफ, वाओ अलिफ। आप लोग सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे पढ़ें, शाबाश, ठीक है। मैं इसलिए बीच में रुक रही हूं ताकि आप मेरे पीछे पढ़ें, रिपीट करें आप। हा या, आइन या, खा वाओ, कौफ रॉ, कौफ भी मोटा पढ़ना है, रॉ भी, कौफ रॉ, कैफ रॉ, शीन या, मीम नून, या
बा, हा दाल, या सीन, सा मीम, ता रॉ, लाम मीम, ऑफ वाओ, कैफ लाम, ऑफ लैम, बा हा। शाबाश, आप लोग सब पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। बा हा, ऑफ दाल, रॉ सीन लाम, हा वाओ दाल, नून दाल रॉ, वाओ ऑफ आइन। आइन की आप देख रहे हैं ये वाली शक्ल बन गई है, वाओ ऑफ आइन, बा आइन दाल। ये देख रहे हैं आप, आइन दरमियान में आया है तो ये वाली शक्ल है, बा आइन दाल, रॉ जीम सीन। अब देखें आगे, ऑफ वाओ मीम, ऑफ वाओ मीम, ऑफ अलिफ लाम, रॉ जीम लाम, खा लाम ता। ये आप देख रहे हैं वो बदलती हुई शक्लें जो थी वो सब इसके अंदर यूज हुई हैं, नजर आ रहे हैं ना आपको। शाबाश। बा लाम गॉइन, नून फा सीन, गॉइन या अलिफ, फा या हा, कैफ अलिफ नून, गॉइन ضاد बा, कैफ ता बा, रॉ या बा, कैफ नून ता मीम, कैफ नून ता मीम, या गॉइन या वो, बा सीन बा। ये आप देख रहे हैं, बा का सिरा बना है और नीचे उसके डॉट आ गया, तो इससे डॉट से हमें पता चल रहा है कि ये बा है। अगर यहाँ दो नुक्ते होते तो वो या होता, लेकिन एक नुक्ता है तो ये क्या है, बा। बा सीन बा बा, बा हा या जीम, ता आइन बा दाल, रॉ अलिफ ता हा, तो रॉ फा कैफ, आइन नून दाल हा, आइन नून दाल हा, अलिफ गॉइन नून। ये देख रहे हैं नून का छोटा सा सिरा बना है और उसके ऊपर नुक्ता है। ऊपर सिरे की वजह से और नुक्ते की वजह से हम इसको पहचान पा रहे हैं कि ये है नून। अलिफ गॉइन नून या, नून मीम वाओ ता, या ऑफ, ऑफ जबान की जड़ से, बहुत जबान की करवट और ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से, या ऑफ बहुत या, अलिफ फा अलिफ कैफ, अलिफ सा या मीम, आइन रैल जबान की नोक और ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से रैल, आइन रैल अलिफ बा, ता जीम रॉ या, अलिफ लॉ लाम मीम, अलिफ ضاد ضاد हा देख रहे हैं आप, दरमियान में जब जीम या हा आता है तो उसकी ये वाली शक्ल होती है दरमियान में, अलिफ ضاد हा कैफ, जीम रॉ अलिफ दाल, कैफ अलिफ शीन फा ता। ये देखें ता, मैंने बताया था आपको ना, दो नुक्ते होते हैं तो उसको ता पढ़ते हैं, अगर दो नुक्ते ना हो डॉट ना हो तो ये हा बन जाता है, और ये हा गले के आखिर के हिस्से से निकलता है। ता आइन, ये देख रहे हैं आप, आइन
आइन, आइन की ये शक्ल है दरमियान की, ता, आइन, जीम, बा, वाव, नून, या, खा, दाल, आइन, वाव, नून, खा, लाम, कॉफ, ता, नून, या, صاد, لام, واو, نون, हा, अलिफ, قاف, صاد, را, تا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس طرح سے آپ جب پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ حروف کی بہت جلد پہچان ہو جائے گی، اور جب آپ اس طرح ایک ایک حرف کو پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کی مخارج کی پریکٹس بھی ہوتی رہے گی۔ جی ہمارے سامنے سورۃ الاخلاص کھل چکی ہے، اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قاف کو زبان کی جڑ سے ادا کریں گے، موٹا پڑھیں گے، قل هو اللہ، ہا کو گلے کے آخری حصے سے، واللہ لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، واللہ ٹھیک ہے، کھڑی زبر ہے، کھینچیں گے اس کو، واللہ احد، آ کو چھوٹا، ہا گلے کے درمیان سے، اور دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، احد، یہ قلقلہ ہوتا ہے۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے اور اس کو کھینچیں گے۔ اللہ، اللہ الصمد، صاد کو پر پڑھیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد، لم یلد، لم یلد، یا کو چھوٹا پڑھنا ہے، دال کے اوپر قلقلہ، لم یلد، یہ آپ کو ریڈ کلر کے دال نظر آ رہے ہیں، ان سب پہ قلقلہ ہونا ہے اس لیے یہ ریڈ ہیں۔ لم یلد ولم یولد، یو کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے، ولم یولد، ولم یولد، ولم یکن لہ، نون نہیں پڑھنا، نون آپ کو دکھائی دیتا ہے، بعض بچے ولم یکن لہ پڑھتے ہیں، کن لہ نہیں، نون لام کے اندر داخل ہو گیا ہے اس لیے لام کے اوپر شاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، آپ ڈائریکٹ کاف کو لام سے ملائیں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ہو کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ الٹے پیش کی وجہ سے، الٹا پیش ہوتا ہے واو مدہ کے برابر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً، کفواً، کاف کو چھوٹا، فا کو چھوٹا، کفواً احد، کفواً احد نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں اظہار ہوگا، جلدی پڑھیں گے، کفواً احد، کفواً احد۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے پاس پورا عامہ پارا جو ہے وہ آ جائے گا، ایک ایک صورت کو الگ الگ پڑھایا گیا ہے، پڑھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، حروف کی ادائیگی کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور عامہ پارا کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گی۔ بیل آئیکن کو جب آپ پریس کریں گے اور آل کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس تمام ویڈیوز اور تمام لیکچر جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ اپنے بچوں کو سکھا سکیں، ان کو بھی اسی طرح صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا سکیں جس طرح سے ایک ایک لفظ جہاں پہ سکھایا گیا ہے۔ تو چلیں اب ایک دفعہ پھر سے آپ سن لیں، اور یہاں پر یہ کہوں گی کہ لیسن نمبر میرا لیسن نمبر 22 جو ہے اس کو سنیں، اس کے اندر اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب، تمام قواعد جو ہیں اس کے اندر مثالوں کے ساتھ سمجھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल इखलास मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, इसी तरह से कलकला का ध्यान रखें और लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ना है 2 जगह पे, इसको याद रखें और इसकी अदायगी इसी तरह से करें। ठीक है जी। सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास के बाद देखिए हमारे सामने खुल चुकी है सूरतुल फलक। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, कौफ को अपने जबान की जड़ से अदा करना है। कुल, आ को मुंह से अदा होगा खाली हिस्से से, आइन को गले से अदा करेंगे, आऊ और खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से। आऊज़ु, जाल को जबान की जड़, जबान की नोक और सामने वाले 2 दांतों के सिरे से। आऊज़ु, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, रा को पुर पड़ेंगे और काफ के ऊपर कलकला करेंगे। बिरब्बिल फलक में शर्री, में यहाँ पे हमने इख्फा करना है, में ऐसे, में शर्री, रा को बारीक पढ़ना है। मा अलिफ मद्दा है, खलक काफ के ऊपर कलकला। में शर्री मा खलक व में शर्री गासिकिन, गौ के गैन के साथ अलिफ है और कौफ के नीचे 2 जेर हैं। गासिकिन इज़ा, जा जबान की नोक और सामने वाले 2 दांतों के सिरे से जाल। इज़ा वक़ब, वाव को होंठों से को गोल करके व क़ा, जबान की जड़ से वक़ब, बा के ऊपर भी कलकला। इज़ा वक़ब वमिन शर्रिन नफ्फासा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, नून के ऊपर शद है इसलिए गुन्ना करना है। फा को खींचेंगे खड़ी जबर की वजह से, सा को खींचेंगे खड़ी जबर की वजह से। फिल उक़द, लाम के ऊपर फिल, फिल नहीं करना, फिल उक़द, फौरन आइन अदा होगा गले के दरमियान से। फिल उक़द और दाल के ऊपर कलकला करेंगे। व मिन शर्रि हासिदिन, हा को गले के दरमियान से, इज़ा, जाल के साथ अलिफ है, इज़ा हसद, दाल के ऊपर कलकला करेंगे। ठीक है, एक दफा फिर सुन लें इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फलक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जी, उसके बाद है सूरतुन नास। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, कौफ को जबान की जड़ से, आइन को गले के दरमियान से, कुल आ को मुंह से छोटा पढ़ेंगे आ। कुल ऊ को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से। जाल को जबान की जड़ और सामने वाले 2 दांतों के सिरे से। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, यहाँ पे रॉ को पुर पढ़ेंगे। जो पुर पढ़े जाने वाले हरूफ हैं वो ग्रीन कलर में है और जो जबान की नोक और सामने वाले 2 दांतों के सिरे से अदा होने हैं वो है रेड, और आइन भी रेड कलर में है, गले के दरमियान से निकलेगा। बी रब्बिन, रॉ, ठीक है, और नून का यहाँ पे गुन्ना। बी रब्बिन नास, मालिकिन नास,
मीम को छोटा, लाम को छोटा और काफ को नून से मिलाना है। मालिकिन नास, अलिफ मद्दा। इलाहिन नास, लाम के ऊपर खड़ी जबर और नून मुशद्दद का गुन्ना। इलाहिन नास में शर्रिल, यहाँ इख्फा होगा। में शर्रिल, रा को यहाँ बारीक पढ़ना है, रा के नीचे जेर है। वसवासिल, वाव के साथ अलिफ है, अलिफ मद्दा है, वाव को खींचेंगे और सीन को लाम से मिलाते हुए ख्वा को पूर पढ़ेंगे, नून मुशद्दद का गुन्ना अदा करेंगे और साथ अलिफ मद्दा अदा करेंगे। में शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी, जबान की नोक और सामने वाले दो दांतों के सिरे से। अल्लज़ी युवस्विसु फी, फी को खींचेंगे या मद्दा की वजह से। सु, स्वाद को पुर पढ़ेंगे और इसके ऊपर पेश है। दाल को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से और नून के ऊपर मुशद्दद गुन्ना है, नून मुशद्दद का गुन्ना है। फी सुदूरिन नास, दाल को खींच रहे हैं वाव मद्दा की वजह से। फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति, नून मुशद्दद का गुन्ना। मिनल जिन्नति वन्नास, एक दफा फिर सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। जी, उसके बाद सूरतों के बाद मैं अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर लाई हूँ सोने की दुआ, और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगी और जिनको याद नहीं वो भी जल्दी से याद कर लेंगे और रात को सोते वक्त पढ़ेंगे, ताकि आपको रात को फिर डर भी ना लगे, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, अगर आपने दुआ पढ़ी होगी तो आपको डर ही नहीं लगेगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो चलें अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आपने ये दो तरह से बेटा दुआ आती है, हदीस के अल्फाज इसके दो तरह से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, इस तरह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और आपने इस तरह से भी पढ़ी बिस्मिकल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। चलें तो मैं इसको कैसे आपने इसको पढ़ना है, कहाँ पे लफ्ज को मोटा पढ़ना है, कहाँ बारीक पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगी, फिर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, चलें। अल्लाहुम्मा, आपने लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ना है और मीम के ऊपर गुन्ना करना है। ठीक है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, बा को सीन से मिलाना है, बिस्मिका, काफ को छोटा पढ़ना है, मीम को भी छोटा, बिस्मिका। आमू तू, आ को छोटा पढ़ना है, मुंह को खींचना है वाव मद्दा की वजह से। आमू तू, ता को छोटा पढ़ना है। व अहया, या के ऊपर खड़ी जबर है, आप खींचेंगे। ठीक है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और दूसरी दुआ इस तरह से, दूसरी है मतलब एक ही है लेकिन दूसरी तरह से पढ़, इस तरह से बिस्मिकल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को भी बहुत पढ़ा करते थे, कभी ये पढ़ते थे और कभी ये, बिस्मिकल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें और सोते वक्त इसको पढ़ा करें। जी बेटा, आपके इस कोर्स में मैं आपके लिए दूध पीने की दुआ भी लाई हूं,
क्योंकि जब आप सोने लगेंगे तो आप दूध पिएंगे और दूध पीना अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी दुआ मांगी दूध के लिए, क्योंकि दूध इतनी अच्छी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूध पेश किया जाता, जब आप दूध पीने लगते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते और अल्लाह ताला से इस दुआ में आपने क्या मांगा, आपने आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह और हमें मजीद इस नेमत से नवाज, या अल्लाह हमें और दूध अता फरमा। ठीक है बेटा, इसमें बरकत अता फरमा और हमें और अता फरमा। ठीक है, तो इसको आपने किस तरह से पढ़ना है, आपने अपने सीधे हाथ में गिलास पकड़ना है, और अगर आप फीडर में पीते हैं तो आपने अपने सीधे हाथ में पकड़ना है फीडर या गिलास। तो आपने पहले ये दुआ पढ़नी है, फिर आपने दूध पीना है। ये दूध पीने के बाद भी पढ़ते हैं और दूध पीने से पहले भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलें। अल्लाहुम्मा, मीम के ऊपर गुन्ना करेंगे, लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिनहू। जिदना का माना था ज्यादा दे, मिनहू ये वाला दूध जो है, या अल्लाह इस हमें इस तरह का दूध, इस तरह की नेमतें और अता फरमा अल्लाह, और इसके अंदर मजीद बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिनहू, या अल्लाह अपने पास से, अपनी तरफ से हमें मजीद दूध अता फरमा और इसके अंदर बरकत अता फरमा। ठीक है बच्चों, आपने इसको इस तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से इसको याद कर लें और अपनी आदत बना लें। बड़े भी इसको पढ़ते हैं और आप भी इसको पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, बड़े भी पढ़ेंगे दूध पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना, अलिफ मद्दा है, वजिदना मिनहू। ठीक है जी बच्चों, मैं आपके लिए इसमें, आपके इस कोर्स में, थोड़े दिनों के कोर्स में, छुट्टियों के कोर्स में, मैं आपके लिए यहाँ पर एक और बहुत ही प्यारी दुआ, अल्लाह ताला के बहुत ही पसंदीदा कलिमात हैं जो मैं लाई हूँ, ताकि आप ये याद करें और अल्लाह ताला के पसंदीदा कलिमात आप पढ़ें। अक्सर जब आप अपने अम्मी अब्बू के साथ नमाज पढ़ेंगे और वो भी बाद में अपनी उंगलियों के ऊपर कुछ पढ़ते हैं ना, आपको पता है कुछ उंगलियों पर पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी क्या पढ़ रहे होते हैं, वो भी पढ़ रहे होते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप पूछते हैं आप क्या पढ़ रहे हो, तो वो आपको बताते हैं सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये कलिमात जो हैं ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंदीदा हैं, और कल क़यामत के दिन ये वाले कलिमात जो हैं ये वजन में बहुत ज्यादा भारी होंगे, इनका वजन बहुत ज्यादा होगा। नेकियों वाले पलड़ा जो है हमारा, नेकियों वाला तराजू जो होगा वो इन कलिमात की वजह से झुक जाएगा, ज्यादा नेकियां हो जाएंगी। अल्लाह ताला जब हमारी नेकियां ज्यादा होंगी तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेज देंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये कलिमात भी आपको अच्छे तरीके से याद करवा दूं, तो आप ये कलिमात पढ़ेंगे और याद करेंगे और फिर अल्लाह ताला से ज्यादा नेकियां हासिल करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हदीस के भी अल्फाज हैं। ठीक है, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, ये वो कलिमात हैं। कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान। ठीक है, कि अल्लाह ताला को ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए हम ये कलिमात पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है बच्चों, चलें। सुबहानल्लाहि, लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, हा को अलिफ मद्दा की वजह से खींचेंगे। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और बेटा इसके बारे में ये भी हदीस आती है कि अगर इंसान के बहुत ज्यादा गुनाह हों, बहुत ज्यादा, कहते हैं कि समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हों, यानी समंदर कितना बड़ा है तो उसके ऊपर झाग आती है इतनी बड़ी जगह पर, तो अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हों तो ये कलिमात पढ़ने से इंसान के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। इन कलिमात को 100 टाइम सुबह के वक्त पढ़ते हैं और 100 टाइम शाम के वक्त पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इनको याद करना है और फिर इनको पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल
हिल अज़ीम, हा को लाम से मिलाना है, हा को गले से निकालना है। सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसके बारे में जो हदीस है वो क्या है? कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान। ये कलमे अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद हैं। ठीक है बच्चों? जी बच्चों, अब जब आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के अंदर जो सबसे छोटी चीज है वो मैंने अभी आपको सिखानी शुरू की है। सबसे पहले जब आप रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, नमाज में आपको खड़ा होना इतना पसंद नहीं होता है ना बच्चों। आप रुकू में शौक शौक से जाते हैं और सजदे में शौक शौक से जाते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको रुकू और सजदे की दुआ तस्बीह याद करा दूं। ठीक है, तो चलें बेटा, आप लोग पढ़ेंगे सुबहाना, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। ठीक है, ये रुकू की दुआ है, रुकू की तस्बीह है। जब आप घुटनों पे हाथ रख के नीचे झुकेंगे ना अपनी मामा के साथ या बाबा के साथ, तो वहां रुकू में आपने क्या पढ़ना है? सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। ठीक है, फिर सजदे में आप जाते हैं, जमीन के ऊपर जब सर रखते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं? सजदा। तो जब आप सजदे में जाएंगे तो आपने क्या पढ़ना है? 3 दफा पढ़ना है। ये भी दुआ 3 दफा पढ़नी है और ये भी 3 दफा। इसको आपने कैसे अदा करना है? सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। आइन को आपने बेटा गले से निकालना है। आला, कई बच्चों को मैंने सुना है वो पढ़े होते हैं सुबहाना रब्बिल आला, सुबहाना रब्बिल आला। रब्बिल आला नहीं पढ़ना बेटा, सुबहाना रब्बी यल आला। यहाँ भी रब्बिल अजीम नहीं कहना, रब्बी यल अजीम। यहाँ भी या आपने बोलनी है, ये या है। और यहाँ पर भी सुबहाना रब्बी यल आला, यल आला। ठीक है बच्चों, रुकू की दुआ कौन सी है? रुकू की तस्बीह कौन सी है? सुबहाना रब्बी यल, या की आवाज निकालते हुए लाम से मिलाना है। सुबहाना रब्बी यल अज़ीम। ठीक है, सुबहाना रब्बी यल आला, सुबहाना रब्बी, रब्बी यल आला। इसी तरह प्रैक्टिस करके आपने ये पूरा सब कुछ याद करना है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें, और इसमें आपके ताउन की भरपूर ज़रूरत है। और दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।